Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the regions of brain, that is forebrain. In forebrain, we have considered three important regions that were cerebrum, which is the cerebral hemispheres, olfactory lobes, and the diencephalon. Each of them we have discussed with the function that olfactory lobes will be associated with the olfactory nerve, that is the sensation of the smell. Secondly, there was the structure of cerebrum, in which the outer region was called cerebral cortex, and a longitudinal fissure divided the brain into two equal parts, and that were left and right cerebral hemispheres. The cerebral hemisphere, each cerebral hemisphere has presence of different lobes, that is frontal, parietal, temporal and occipital lobe. After discussing about the lobes of the cerebral hemispheres, we have discussed about functions of each of them. Like frontal is associated with learning, creativity, reasoning as well as voluntary muscular activities. Then after was the parietal, which was associated with touch, pain, pressure, right? So such feelings like touch or pain or pressure would be associated with the parietal lobe. Moreover, there was also presence of speech area in the parietal lobe. Occipital is associated with the vision, the sight, and lastly temporal was having olfactory region, auditory region. So these were the regions by which sensation of hearing and the smell would be able to understand. There was also presence of the speech area, which was called Wernicke's area, for understanding the speech and writing. So in this way, different lobes of brain have different functions. Third, we have discussed about diencephalon, which consists of epithalamus, thalamus and hypothalamus. The floor hypothalamus serves as a connection between nervous and the endocrine system. It regulates the body temperature, that is thermoregulation. Moreover, it regulates the behavior of the person as well as hunger, thirst, satiety centers are also present in the structure of hypothalamus, and therefore they will be regulating all such emotions. Moving on to the next part of the brain, that is the midbrain. So midbrain consists of the structure known as corpora quadrigemina. The midbrain consists of the structure called corpora quadrigemina. Now this corpora quadrigemina will be appearing as, it is a structure that will be very small in size. It is very small in size. ये क्या होता है कि जो मिड ब्रेन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो जस्ट बीनीथ द रीजन ऑफ थैलेमस. इट इज लोकेटेड बीनीथ द थैलेमस. सो अपर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन, द अपर सरफेस of the midbrain consists of two pairs of round projections. Two pairs of round projections. अगर आप डायग्राम में मिड ब्रेन का लेबलिंग देखोगे, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व अ वेरी फाइन कैनाल लाइक स्ट्रक्चर. ये इतना फाइन होता है जहां पे हिंड ब्रेन स्टार्ट होने वाला है, जस्ट उसके ऊपर. मिड ब्रेन वैसे तो देखने में ही बहुत ही छोटा है, बट इन दिस मिड ब्रेन देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड corpora quadrigemina, and this corpora quadrigemina is made up of two pairs of round protuberances. Protuberances कह सकते हैं या तो projections कह सकते हैं. तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा मिड ब्रेन का, और इनमें ऊपर के दो जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नोन एज द सुपीरियर colliculi and the lower two are known as inferior colliculi. तो यहाँ पे
क्या है, 2 pairs of round projections. This is the first pair and this is the second pair. इसके नीचे क्या आ जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा pons varoli और साइड पे आ जाएगा cerebellum. You can again look in the diagram for the same. So here there are 2 pairs of round projections. The superior colliculi is associated with or receives the impulse for sight. मतलब विजन के साथ एसोसिएटेड है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड द इंफीरियर कॉलिक्यूलाई इज एसोसिएटेड विद हियरिंग. मतलब ऑडिटरी जो फंक्शन रहता है वो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई से होता है. मिड ब्रेन से क्या होता है कि इंपल्सेस आर जस्ट गोइंग टू पास थ्रू द मिड ब्रेन. मतलब बॉडी के पार्ट से थ्रू द मिड ब्रेन इट इज गोइंग टू रीच द रीजन ऑफ द फोर ब्रेन, राइट. जैसे कि यहाँ पे विजन है तो ऑप्टिक नर्व्स जो है, जो आई से स्टार्ट होती है, थ्रू द मिड ब्रेन, थ्रू द थैलेमस, दे विल गो टू द ऑसिपिटल लोब. दे विल नॉट डायरेक्टली गो टू ऑसिपिटल लोब बाय जंपिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. दे विल बी रिलेइंग द इंपल्स. सो मिड ब्रेन का फंक्शन ये रहता है दैट इट रिलेज द इंपल्सेस from different parts of the body to the forebrain, or you can say lobes of the forebrain. Okay, so here there will be the structure of the midbrain and two on one side. एक side के दो जो है, जैसे कि लेफ्ट सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड लेफ्ट इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, इतने को कहा जाता है कॉर्पोरा बाइजेमिना. और यहाँ पे 4 है इसीलिए कॉर्पोरा, दैट इज रिफर्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. Okay, so that was about the midbrain. Midbrain only relays the information, right? There is no other specific function that it performs separately. वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिले करेगा फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द मिड ब्रेन, थ्रू द थैलेमस टू द डिफरेंट लोब्स ऑफ द ब्रेन. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज हिंड ब्रेन. तो हिंड ब्रेन में सबसे पहले आ जाएगा सेरिबेलम. हिंड ब्रेन में सबसे पहले इंक्लूड होगा सेरिबेलम. सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है, राइट, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम. दिस सेरिबेलम ऑल्सो इज मेड अप ऑफ 2 cerebellar hemispheres. It consists of 2 cerebellar hemispheres which are connected by वर्मिस. बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है वर्मिस. तो 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं और बीच में, जैसे कि ये वर्मिस है, इट अपीयर्स लाइक अ वर्म एंड हियर आर द 2 cerebellar hemispheres. They will be appearing like this. Okay, तो ऐसे 2 cerebellar hemispheres देखने को मिलेंगे और ये कनेक्टेड होते हैं. तो इनके बीच में ये जो कनेक्शन है इसे वर्मिस कहा जाता है. अब ये जो सेरिबेलम है, राइट, इट इज ऑल्सो हैविंग ग्रे मैटर आउटसाइड. मतलब बाहर के जो नर्व सेल्स होंगे they are going to be non-myelinated and therefore there is gray matter outside and inside there is going to be the white matter. Moreover, यहाँ पे जो cells होते हैं they have flask shaped cyton और flask shaped cyton वाले cells को क्या कहा जाता है, Purkinje cells. So there is presence of Purkinje cells in the region of the cerebellum. तो सेरिबेलम में क्या याद रखना है, दैट सेरिबेलम हैज 2 cerebellar hemispheres. जैसे सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स हैं, राइट, जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो हम बोलते हैं, वैसे ही सेरिबेलम जो है उनके भी 2 हेमिस्फीयर्स हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, और ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ स्मॉल वर्म लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वर्मिस. दूसरी चीज, यहाँ पे भी ग्रे मैटर आउटसाइड है और अंदर जो सेल्स होंगे, जो नर्व सेल्स होंगे, उनके फ्लास्क शेप
साइटोन होते हैं, और फ्लास्क शेप साइटोन वाले न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है? पर्किंजे सेल्स कहा जाता है। अगर सेरिबेलम का फंक्शन की बात करें तो इट विल बी regulating activities like running, talking, typing. So these activities are regulated. अब running, talking, typing जो है वो क्या होता है कि ऐसे तो ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, पर अगर हम रनिंग की बात करें तो वो तो वॉलेंटरी एक्टिविटी हुई, पर ये क्या करता है कि इनिशियल स्टेजेस में इट इन्वॉल्व्स लर्निंग, and once it is being learned it is going to be continuously going to occur, right? इनिशियली क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, पर सीख जाने के बाद ये एक्टिविटी कैसी हो जाती है? इनवॉलेंटरी हो जाती है। व्हेन यू आर साइकिलिंग तो उसमें आप इनिशियली क्या करते हो? आप सीखते हो, बट वंस यू लर्न यू इनवॉलेंटरीली आर गोइंग टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो सच एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द सेरिबेलम। मोरओवर ये जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स जो हैं, अगर उनका क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो अंदर की तरफ से पूरा ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है आर्बर विटे। एंड आर्बर विटे का मतलब ये होता है ट्री ऑफ लाइफ। So cerebellum इतना important है that any injury to cerebellum can even lead to death of the person, and therefore it is known as the tree of life, arbor vitae. The second part of the hindbrain is the pons varolii. The pons varolii is having the function of relaying the impulses. It relays the information. आप ऐसा पूछ सकते हो कि pons varolii का लोकेशन, तो it is located in front of cerebellum. Located in front of cerebellum, below midbrain and above medulla. मेड्यूला के ऊपर प्रेजेंट है, मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है, और सेरिबेलम के सामने प्रेजेंट होता है पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली में एक तो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इंस्पिरेशन के लिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड व्हाट डज इट डू? इट लिमिट्स द इंस्पिरेशन, राइट? लिमिट्स इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन को लिमिट करता है। दैट इज वन फंक्शन ऑफ पॉन्स वेरोली। अदरवाइज द अदर फंक्शन इज relay the impulse between. So where it is going to relay the impulse? Between the lower part मतलब medulla to upper regions of brain. मतलब स्पाइनल कॉर्ड से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से मेड्यूला से कहां जाएगी? टू द पॉन्स, एंड फ्रॉम द पॉन्स इट विल बी रिलेड टू द रिस्पेक्टिव अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट ऑल्सो रिलेज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. तो इंफॉर्मेशन को ट्रांजिट करना ये काम किसका है? पॉन्स वेरोली का है. एंड थर्ड रीजन दैट इज मेड्यूला oblongata. And medulla oblongata is mainly for involuntary reflexes like vomiting, sneezing, coughing, yawning, राइट? ये जो यार ऐसे बहुत से. तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है इट इज लोकेटेड बिलो द पॉन्स. पॉन्स के भी नीचे लोकेटेड है मेड्यूला, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लोकेटेड है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारी बॉडी की सारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. यॉर्निंग, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, ये जो सारे रिफ्लेक्सेस है, these all are associated with the role of medulla oblongata. So in this way these three were the regions of the hindbrain.
सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, दैट इन आवर ब्रेन देयर इज वन मोर एडिशनल सिस्टम व्हिच इज नोन एज लिम्बिक सिस्टम. वैसे तो इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन हमारी बुक में नहीं है, बट वी आर स्टिल जस्ट ब्रीफिंग दैट लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारे डायंसिफिलॉन और सेरिब्रम में से थोड़े स्ट्रक्चर्स को मिला के बनाया गया हुआ एक सिस्टम है जो हमारे ब्रेन में लोकेटेड है. सो इट कंसिस्ट ऑफ सम रीजन्स ऑफ डायंसिफिलॉन एंड सेरिब्रम. डायंसिफिलॉन और सेरिब्रम के कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स को साथ में मिला के बनता है लिम्बिक सिस्टम. इनमें पार्ट्स आ जाते हैं जैसे कि हिपोकैम्पस, एमिगडेला, ऐसे रीजन्स आते हैं. मेमिलियरी बॉडीज, ऐसे 3 रीजन्स इंक्लूड होते हैं, हिपोकैम्पस, मेमिलियरी बॉडीज एंड एमिगडेला. लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, तो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है लिम्बिक सिस्टम, राइट. So some of the memory we have in our childhood, but still we are able to remember them. So short-term memories are converted to long-term by limbic system. It controls the sexual behavior and most importantly, it functions as the emotional brain of our body. Emotional brain मतलब the emotions like fear, fight, anxiety, depression, happiness, likes, dislikes, इन्हें कंट्रोल करने का काम लिम्बिक सिस्टम का होता है. लिम्बिक सिस्टम में जो मैंने वर्ड बोला एमिगडेला, वो हमारे टेम्पोरल लोब का एक छोटा सा पार्ट है. सो इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब और यू कैन से इट इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द टेम्पोरल लोब. वैसे हिपोकैम्पस जो है वो एक सी हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब. तो हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमोशनल ब्रेन का काम करता है और वो हमारे सारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, लाइक हैप्पीनेस, सैड, फियर, फाइट, एंजाइटी, डिप्रेशन, लाइक्स, डिसलाइक्स, इन सबको कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड द होल टॉपिक ऑफ द ब्रेन, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड द लिम्बिक सिस्टम.